In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum students. How are you all beta? I hope you all are fine. I am your science teacher from Metropolitan School. What time is it beta? It's 9 o'clock. Which instruments we use to measure time? We use clock for this purpose. Now today we are going to start a new chapter, that is chapter number 9, measurement. In this chapter we learn about how we measure time, volume and length of any object. What is time beta? Time is the interval between two occurrences. दो वाकयात के दरमियान का जो इंटरवल होता है उसको टाइम कहते हैं और हम टाइम को मेजर करने के लिए क्लॉक यूज करते हैं. There are two types of clock, digital clock and analog clock. These are the two types of clock. This is an analog clock. An analog clock shows time by the position of its arms. एनालॉग क्लॉक में टाइम आर्म्स की पोजीशन से शो होता है. आपको ये दो आर्म्स नजर आ रहे हैं क्लॉक के. वन आर्म इज स्मॉल एंड अदर आर्म इज लॉन्ग. इन आर्म्स की हेल्प से टाइम शो होता है एनालॉग क्लॉक में. दिस इज अ डिजिटल क्लॉक. डिजिटल क्लॉक शोज टाइम इन नंबर्स. डिजिटल क्लॉक में टाइम्स नंबर के थ्रू शो होता है. And you can easily read the time with the help of this digital clock. Hours, minute and second are the standard units of time. The longer hand of the analog clock show minute and the smaller hand of analog clock shows hours and the thin hand shows second. एनालॉग क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं. एक लॉन्ग हैंड होता है, एक स्मॉल और एक बहुत थिन हैंड होता है. जो लॉन्ग हैंड होता है वो मिनट शो करता है. जो स्मॉल हैंड होता है वो आवर शो करता है और जो बिल्कुल थिन हैंड होता है वो सेकंड को रिप्रेजेंट करता है. When the smaller hand goes from one number to the next, this time interval is called 1 hour. जब एनालॉग क्लॉक में स्मॉलर हैंड जो होता है वो एक नंबर से दूसरे नंबर तक मूव करता है तो 1 आवर कहलाता है. Similarly, when the longer hand goes from one number to the next, it takes 5 minutes. जब जो लॉन्गर हैंड होता है एनालॉग क्लॉक में वो एक नंबर से दूसरे नंबर तक मूव करता है तो 5 मिनट कहलाते हैं. वॉल्यूम इज द स्पेस occupied by an object. वॉल्यूम वो स्पेस होती है जो कोई भी ऑब्जेक्ट घेरता है. लिक्विड्स लाइक वाटर, मिल्क एंड ऑयल are measured by their volumes. वाटर, मिल्क एंड ऑयल जो है ये अपने वॉल्यूम से मेजर किए जाते हैं. ये जितनी जगह घेरते हैं वो इनका वॉल्यूम कहलाता है. मेजरिंग जार्स और बॉटल्स are used for this purpose. Liter is a common unit of measurement of volume.
वॉल्यूम को हम मेजर लीटर में करते हैं। लीटर इसका स्टैंडर्ड यूनिट है जिसमें वॉल्यूम मेजर किया जाता है। लीटर is a common unit of measurement of volume. Deciliter and milliliter are smaller units of volume. 1 liter is equal to 1000 milliliters. Saad had fever. His body temperature was 39 degrees Celsius. What is temperature, beta? Temperature tells us how much heat is present in an object. टेम्परेचर हमें बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी हीट प्रेजेंट है। द डॉक्टर यूज्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर। दिस इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। वी मेजर टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ दिस thermometer. Thermometer is an instrument which we use to measure temperature. थर्मोमीटर के थ्रू हम अपना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। We measure temperature in Fahrenheit, Celsius and Kelvin scales. These are the standard unit of temperature. We measure temperature in these 3 units: Fahrenheit, Celsius and Kelvin. ये टेम्परेचर के यूनिट्स हैं। A clinical thermometer reads the temperature from 35 Celsius to 42 degree Celsius. क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 से लेके 42 सेल्सियस तक टेम्परेचर रीड कर सकता है। और अगर इसको हम फॉरेनहाइट यूनिट में देखें तो 94 से लेकर 108 तक क्लिनिकल थर्मोमीटर टेम्परेचर रीड कर सकता है। The body temperature of a normal person is 37.0 Celsius, which is equal to 98.6 Fahrenheit. हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पर 37.0 नॉर्मल होता है और ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 के इक्वल होता है। These are the normal temperature of a person. If you want to measure your room temperature, then you can use a special type of thermometer for this purpose, and this thermometer is called as room thermometer. अगर आपने अपने रूम का टेम्परेचर मालूम करना है तो आपको थर्मोमीटर की नीड होगी, लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर से आप अपने रूम का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप का थर्मोमीटर रिक्वायर होगा जिसको रूम थर्मोमीटर कहते हैं। एंड दिस इज अ रूम थर्मोमीटर। इस रूम थर्मोमीटर की हेल्प से आप अपने रूम का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। In science laboratories, higher temperatures are measured by using another type of thermometer called laboratory thermometer. लैब्स में जो थर्मोमीटर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू हम हायर टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। एंड दिस इज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 points is called length. 2 points के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है इसको लेंथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस गिटार का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और
एंडिंग पॉइंट है, इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा? ये लेंथ कहलाएगा। The standard unit of length is meter. Short length are measured in units like centimeter and millimeters. जो शॉर्ट लेंथ होती है उनको मिलीमीटर और सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, एंड किलोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर लॉन्गर लेंथ। जो लॉन्गर लेंथ होती है वो किलोमीटर में मेजर की जाती है, एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। रूलर, meter rod and measuring tapes are commonly used for measuring length. रूलर, मीटर रॉड और मेजरिंग टेप के जरिए हम लेंथ को इजीली मेजर कर सकते हैं। We normally use our ruler to measure length in centimeters or inches. हम नॉर्मल रूलर के थ्रू लेंथ को मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर और इंचेस के यूनिट में। Now here we measured the length of this pencil with the help of ruler. हम इस रूलर की हेल्प से इस पेंसिल की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। अब देखें, जहां से पेंसिल की टिप स्टार्ट हो रही है उसको हमने रूलर के 0 सेंटीमीटर पे प्लेस कर दिया। अब इसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं। अब जो एंड पॉइंट है पेंसिल का वो आ रहा है रूलर के 14 सेंटीमीटर पे। दिस मीन्स द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इस पेंसिल की लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। इस तरह आप अपनी पेंसिल की लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर रूलर। 1 kilometer is equal to 1000 meter and 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसी तरह 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये सारे यूनिट्स लेंथ मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, डू यू नो इवन द रेनफॉल ऑफ अ प्लेस कैन बी मेजर्ड। बारिश को भी मेजर किया जा सकता है, किसी भी जगह की बारिश को मेजर किया जा सकता है। रेन वाटर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम is collected in a jar which is kept out in the open environment. This jar measures the amount of rainfall and is called a rain gauge. Rainfall is measured in millimeters. हम बारिश के पानी को भी मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस रेन गेज जो जार की तरह होता है इसको किसी भी ओपन एनवायरनमेंट में रख दें। जब बारिश होगी तो उसका पानी इस जार में कलेक्ट हो जाएगा और फिर हम इस जार की हेल्प से उस रेन वाटर को मेजर कर सकते हैं। हम रेनफॉल को मेजर करते हैं मिलीमीटर्स में with the help of this rain gauge. Now, this is time for your homework. Do question number 1. Define volume and write its unit of measurement. This is a short question.
And question number 2 is write a note on clinical thermometer. And this is a long question. Do activity in book page number 89. आपने अपनी बुक में पेज नंबर 89 पे जो एक्टिविटी गिवन है वो आपने अपनी बुक में ही करनी है और ये क्वेश्चन आंसर्स अपने कॉपी में करने हैं, आपने क्लास वर्क कॉपी में करने हैं विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. दिस इज योर होमवर्क. I hope you got the lesson in a better way. This was Miss Kuratulan signing off. May Allah increase your knowledge. Stay home, stay safe. Thank you for your attention. Allah Hafiz.